A very warm welcome to everyone. This is Vishu Chaudhary. I am a chemistry faculty and I have done masters in chemistry from the University of Delhi and I have cracked the GATE Chemical Sciences exam twice. Now it's been 5 years since I am mentoring the students, imparting the comprehensive knowledge of the subject and getting them one step closer to their dreams of getting into IITs and NEET. So today we will see a small section from the chapter Carbon and its compounds, and the topic is, we will start with the hydrocarbon. So if I ask you, what do you understand by the term hydrocarbon? Now, जैसा कि हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम में ही छिपा हुआ है, हाइड्रोकार्बन दैट इज द organic compounds of carbon and hydrogen. Organic compounds of carbon and hydrogen. Now, if I want to classify hydrocarbon into two categories. One is saturated hydrocarbons, and other is unsaturated hydrocarbons. Now, what are saturated hydrocarbons? वो हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर वी नो दैट कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, कि एक कार्बन एटम काफी सारे कार्बन एटम्स के साथ इंटरलिंक कर सकता है. नाउ अगर वो सारे कार्बन एटम्स के बीच में केवल एक सिंगल बॉन्ड है, वो आएंगे in the category of saturated hydrocarbons. So basically saturated hydrocarbons are the compounds having only single bond between carbon atoms. और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एटलीस्ट वन डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए. सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स और द कंपाउंड्स having at least one double bond and one triple bond between carbon atoms. Now, saturated hydrocarbons can also be called alkanes. Now, I said कि एक सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से आपस में इंटरलिंक है, तो फिर इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? CnH2n+2. देखो कैसे, अगर मैं फर्स्ट एल्केन की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली की बात करता हूं, तो वो है आपका, इफ आई पुट n is equal to 1, so it becomes C1H2+2, that is CH4. This is the first member of the saturated hydrocarbon family, which is called methane. Now, why methane? Because if I have one carbon, the word root for one carbon is meth. And why ane? It comes from alkane. Since they are called alkanes, so this ane comes from alkane. So the first member becomes methane, where I have only one carbon atom, and one carbon atom is attached to 4 hydrogens via single bond. Now, if I go to the next member, because I know what is a homologous series, अगर मैं homologous series लिखता हूं for alkanes, first of all, what is homologous series? Homologous series is a family of organic compounds. having
having same chemical property, having same functional group, and same chemical properties, and where each successive member of the family, differ by CH2 यूनिट. इसका मतलब है कि अगर मैं स्टार्ट करता हूं मीथेन से, तो जो नेक्स्ट मेंबर होगा इस फैमिली का, एल्केन्स का, उसमें मैं क्या ऐड करूंगा? CH2 यूनिट. और हमें पता है कि C का मास कितना होता है? 12 यूनिट प्लस 2 हाइड्रोजन 2 यूनिट, सो टोटल मास ऑफ 14 यूनिट. तो अगर मैं इसमें मीथेन में 14 यूनिट मास को ऐड करता हूं, दैट मींस एक CH2 यूनिट को ऐड करता हूं, तो इट बिकम्स द नेक्स्ट मेंबर. सो द नेक्स्ट मेंबर बिकम्स C2H6. ठीक है, एंड विच इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2. So if you put n की value 2, you have C2H6, which is the next member of alkane, and the name is ethane. The name is ethane. Now why ethane? Let me tell you the word roots. So suppose if you have one carbon, the word root is meth. If you have 2 carbons, the word root is eth. If you have 3 carbons, the word root is prop. If you have 4 carbons, the word root is but. And if you have 5 carbons, the word root is pent. Then we have hex, sept, oct, and so on and so forth. Okay, so now again, if I want to write the homologous series for alkanes, it becomes, the first member is methane, the second member is ethane, the third member is propane, the fourth member is butane, and like this we can. This is your methane, then this is ethane, this is propane, this is butane. Now I told you that मैंने हाइड्रोकार्बन्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनको हम एल्केन्स भी बोलते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. नाउ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में को मैं फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एटलीस्ट अगर 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसको मैं बोलूंगा एल्कीन, और अगर एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको मैं बोलूंगा एल्काइन. एटलीस्ट 1 प्रेजेंट होना चाहिए, एक से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं. सो एल्कीन एंड एल्काइन. सो व्हाट आई सेड, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसमें एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. अब क्योंकि मुझे एक डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम तो 2 कार्बन चाहिए, तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं. इसका जनरल फॉर्मूला जो होगा वो होगा CnH2n, और इसके लिए होगा CnH2n-2. चलो, सो जैसे कि अब हमें होमोलोगस सीरीज लिखनी है एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए. सो अगर मैं एल्कीन्स की बात करता हूं और एल्काइंस, नाउ तो जैसा कि मैंने बताया कि एक डबल बॉन्ड होने के लिए मिनिमम 2 कार्बन्स तो होने चाहिए. इसका मतलब जो फर्स्ट मेंबर है एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज का, वो है जो मीथेन तो पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? क्योंकि उसमें तो मेथ का मतलब होता है एक कार्बन, और एक कार्बन तो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता. तो एल्कीन में जो फर्स्ट मेंबर होगा वो क्या होगा? वो होगा, जब आप इसकी वैल्यू, तो फर्स्ट मेंबर होगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2. कैसा है देखो, आपको मैंने बताया CnH2n जनरल फॉर्मूला है, तो आपको n = 1 तो आप रख ही नहीं सकते हो, तो मिनिमम 2 कार्बन आपको चाहिए डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड के लिए. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H4, which I can write like this.
देखो C2, तो फर्स्ट आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लो, और आपको पता है कि कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, दैट मींस अ कार्बन एटम कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। तो 2 बॉन्ड, सपोज इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स तो बना लिए, तो अब उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हम हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, ऐसे इधर और इधर, एंड दिस मेंबर इज कॉल्ड एथ बिकॉज देयर आर 2 कार्बन्स, और एल्कीन से ईन आ जाता है, तो दिस इज इथीन, this is ethene. The common name is ethylene. The common name is ethylene. This is the gas ethylene. Now next member is C3H6, which is propene. Propene. Then we have C4H8, which is butene. Which is butane. ऐसे ही अगर हम एल्काइंस में बात करेंगे तो एल्काइंस में भी एक ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए मिनिमम ऑफ 2 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड। तो हम कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट मेंबर होगा वो होगा C2H2, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो मैंने बोला एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एक कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना लिए दूसरे कार्बन के साथ, एक और बॉन्ड बनाना है, उसे सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने H के साथ बॉन्ड बना लिया, एंड दिस इज योर एथ। Why एथ? Because 2 कार्बन्स, एंड एल्काइन से आइन आप यूज करते हो, तो दिस इज इथाइन, एंड द कॉमन नेम इज एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन। दिस इज ऑल्सो गैस, एसिटिलीन। द नेक्स्ट मेंबर इज C3H, which is double of this C6 - 2, which is C3H4, and this is your propene. ऐसे ही ब्यूटीन, पेंटीन, आप ऐसे ही पूरी होमोलोगस सीरीज बना सकते हो। इसमें भी वही है, एक फर्स्ट मेंबर के बाद अगर हम जब सेकंड मेंबर पर जाते हैं, या फिर हर एक सक्सेसिव मेंबर CH2 यूनिट से डिफर करता है। ओके, अच्छा, अब हम चाहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है आपकी कंबशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज कंबशन? कंबशन का मतलब होता है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या मैं जनरलाइज्ड वे में भी लिख सकता हूं कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये आपका एयर है, तो क्या होगा? जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कंबशन प्रोडक्ट्स, वो हो गए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर लिक्विड प्लस लॉट ऑफ हीट एंड लाइट इज released. So energy is released in the form of heat and light. Now for example, if you see, now simple carbon, so carbon, when carbon is born in the presence of oxygen, it gives you CO2 gas. Now if you have methane, saturated hydrocarbon, then it burns in the presence of oxygen to give you carbon dioxide plus water plus heat. Now if you balance it, this is 1 carbon, 2, so if I write 2 over here, 4, so this is a balanced equation. Now not only hydrocarbons, suppose if you have alcohol, this is my ethanol, so if I perform the combustion reaction or I burn it in the presence of oxygen, the products are carbon dioxide plus water plus lot of heat is released. Tell me if this is clear. Yes? Okay. Now, so saturated hydrocarbons जितने भी होते हैं, saturated hydrocarbons, अगर उनका कंप्लीट कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन मतलब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट कंबशन, तो आपका जो
तो दे burn with a blue flame. और अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, दे बर्न विद अ सूटी फ्लेम. देयर विल बी लॉट ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. बर्न विद अ सूटी फ्लेम, दैट मीन्स इट इज कवर्ड विद अ सूटी फ्लेम. नाउ, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो आपके बर्न होते हैं, बर्न विद येलो स्मोकी फ्लेम. ओके, अब आपको पता है कि पेट्रोलियम, जब पेट्रोलियम होता है आपका, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले लो आप, जिसमें कि कैरोसिन भी होता है, प्रोडक्ट्स लाइक कैरोसिन, जब वो बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है, उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO2 प्लस सल्फर SO2, ये भी रिलीज होते हैं, और इन्हीं को हम, जो कि कंट्रीब्यूट करता है एज मेजर पॉल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में नाइट्रोजन प्लस सल्फर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इट गिव्स, along with carbon dioxide, we get oxides of nitrogen and sulfur, and these oxides, you know that they are major pollutants in the environment, and they are also responsible for the acid rain, because when rain water reacts with these, it gives rise to the respective acids. Okay, now the second kind of reaction is your oxidation reactions. Oxidation. Now we know what is oxidation. We have learnt in the chapter chemical reactions and equations that oxidation is addition of oxygen. Oxidation is addition of oxygen. Now, suppose if I want to perform the oxidation of ethanol, I have ethanol. Now, I can perform this oxidation in two ways. मैं दो तरीके से इसको ऑक्सीडाइज कर सकता हूं. पहले, अगर मैं, अच्छा, ऑक्सीडेशन होगा किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में. तो अगर मेरे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक है मेरे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर मेरे पास, जैसे कि PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, अगर इस तरीके का कुछ है, तो जो इथेनॉल है वो जो ऑक्सीडाइज होगा वो होगा एसिटल्डिहाइड, दैट मींस एल्डिहाइड में. और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि एल्केलाइन KMNO4 या फिर एसिडिक K2 एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है. पहले एसिटल्डिहाइड बनता है और फिर एसिटल्डिहाइड का भी फर्दर ऑक्सीडेशन होकर एसिटिक एसिड मिलता है. मतलब इथेनॉल कन्वर्ट्स इनटू इथेनोइक एसिड, जिसको आप एसिटिक एसिड भी बोलते हो. CH3COOH. और देख लो, ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का एडिशन ही हुआ है, तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. नेक्स्ट, थर्ड टाइप की रिएक्शन है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जैसे कि नाम ही में ही छिपा हुआ है कि कोई चीज सब्स्टिट्यूट हो रही है, कोई चीज रिप्लेस होके दूसरी चीज उसकी जगह आ रही है, उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ one or more hydrogen of a compound
of an organic compound by another group, by another atom or a group of atoms, or a group of atoms is called substitution reaction, is called substitution reaction. जैसे कि सपोज इफ आई हैव मीथेन CH4, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3H। तो अगर मैं इसका एक H सब्स्टिट्यूट करता हूं, सपोज आई एम डूइंग क्लोरिनेशन, जिसको मैं हेलोजिनेशन भी बोलता हूं, तो सपोज मैं इसका एक H Cl और इस Cl को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो क्या होगा? देयर इज अ रिमूवल ऑफ HCl मॉलिक्यूल लाइक दिस। Let me show it like this. So there is a removal of this HCl molecule and what you get is CH3Cl. That means एक H substitute हो गया है one chlorine atom के साथ plus HCl. In the presence of light, this is important, in the presence of, this reaction happens in the presence of light and the mechanism is radical, free radical mechanism. ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास ऐसा मीथेन का मॉलिक्यूल है, ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव हो जाता है। मतलब इस, आपको पता है एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। ऐसे ही क्लोरीन मॉलिक्यूल में भी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब क्या होता है, ये मिथाइल रेडिकल इस क्लोरीन रेडिकल के साथ रिएक्ट कर लेता है और ये दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेते हैं CH3Cl। ऐसे ही ये H रेडिकल, H फ्री रेडिकल Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट करने के बाद आपका HCl मॉलिक्यूल बना लेते। सो दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन। नाउ अब मैंने बोला कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन। देखो, अगर मेरे पास CH4 मॉलिक्यूल है और मैं इसका क्लोरिनेशन कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, तो क्या होगा, मैंने बोला CH3Cl मिलेगा, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, क्लोरोमीथेन मिलेगा। लेकिन अगर मेरे पास क्लोरीन एक्सेस में गिवन है, अगर मेरे पास एक्सेस में है, तो हर एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता चला जाएगा। तो जो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लोरिनेशन करूंगा तो दो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे क्लोरीन के साथ, फिर थर्ड स्टेप में एक और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और फोर्थ स्टेप में फाइनली सारे ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए और मेरे पास, आई स्टार्टेड विद मीथेन, मैंने मीथेन से शुरू किया था और मैं आपका टेट्रा क्लोरोमीथेन तक आ गया, टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो देखो सारे H सब्स्टिट्यूट हो गए हैं क्लोरीन एटम्स के साथ। ओके, नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन is addition reactions. Addition reactions. Now addition reactions में क्या है? Addition of dihydrogen, addition of dihydrogen, that is H2, ठीक है, in an unsaturated hydrocarbon, in an unsaturated compound, in an unsaturated organic compound, ठीक है। देखो, तो एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, इसको मैं, इस रिएक्शन को मैं हाइड्रोजनेशन भी बोल सकता हूं, हाइड्रोजनेशन। देखिए क्या होता है, सपोज मैं स्टार्ट करता हूं इथीन, मेरे पास इथीन है जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका एडिशन कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन का एडिशन कर रहा हूं इस मॉलिक्यूल में इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, लेकिन खुद वो रिएक्शन का पार्ट नहीं होता। इसका मतलब इट स्पीड्स अप द रिएक्शन विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड इन इट। सो दिस इज कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या यूज करूंगा, लाइक निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, ठीक है, हीटेड। सो व्हाट यू गेट इज, सो आपने स्टार्ट किया इथीन से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, और आपको मिल जाएगा इथेन जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपको मिल गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
दैट इज इथेन। दैट इज क्यों? क्योंकि आपने डबल बॉन्ड को ब्रेक करा और हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। कैसे ऐड कर दिया? देखो ये इथीन है, यहां लिख लेता हूं इसको। मेरे पास ये एक मेटल का सरफेस है, सपोज मैं पैलेडियम बोल रहा हूं, ये पैलेडियम का सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब्ड हो जाती है। मैं एब्जॉर्ब्ड वर्ड यूज नहीं कर रहा, एब्जॉर्ब्ड का मतलब तो वो बल्क में चली जाती है अंदर, लेकिन मैं बोल रहा हूं सरफेस के ऊपर वो एब्जॉर्ब होती है। तो इस तरीके से मैं हाइड्रोजन गैस दिखा सकता हूं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गई। अब क्या होगा? ये पाई बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है, देखो ये पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या होगा? यहां पे ऐसे ये बॉन्ड बनेंगे। तो ये हो रहा है बॉन्ड फॉर्मिंग और ये हो रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो आपको एक 4 मेंबर्ड रिंग मिल रही है। देखो एक 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। जब ये रिएक्शन हो रही है तो ये इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो अब आप क्या मिला? ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया और आपको ये मिल गया, ठीक है। और पैलेडियम का सरफेस आपको वापस मिल गया। देखो तो यही तो था कि कैटालिस्ट ने स्पीड अप कर दिया रिएक्शन को, लेकिन खुद वो पार्ट नहीं हुआ रिएक्शन का, ठीक है। तो दिस इज योर एडिशन रिएक्शन। नाउ लेट अस सी द 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, organic compounds. One is ethanol and one is acetic acid or ethanoic acid. So let us see what is ethanol. Ethanol. Now suppose ethanol. So I have ethane. So I have ethane. ठीक है, ethane is CH2, CH3, single bond CH3. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. If I replace one H of ethane with a group which is OH, this is hydroxyl group. This is a functional group, hydroxyl group. So what I get is CH3, CH2OH, and this is your ethanol. Ethanol. So basically what is happening? मैंने alkane से शुरू किया, मैंने E को रिप्लेस कर दिया और ऑल को ऐड कर दिया, ऑल फ्रॉम एल्कोहल, तो मेरे पास मिल गया एल्केनॉल। इसीलिए मैंने इसका नाम इथेनॉल रख दिया, एल्केनॉल। सो एल्केन से मुझे एल्केनॉल मिल गया। अच्छा देखो, सो अब उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। देखो इथेनॉल का स्ट्रक्चर है ये। जब हम एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स करते हैं तो वहां पर मैं बताता हूं कि जो भी हाइड्रोजन, क्योंकि एसिड्स कौन होते हैं? जो हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं। तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, उस केस में ये वाला H आसानी से डोनेट हो सकता है, कैन इजीली बी डोनेटेड। अगर इजीली भी डोनेटेड हो सकता है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इथेनॉल इज एसिडिक इन नेचर? यस, इथेनॉल इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। अच्छा ठीक है, अगर इथेनॉल एसिड की तरह एक्ट कर रहा है तो ये इसको एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो हमने पढ़ी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में, वो देनी चाहिए। हम देखते हैं अगर ये एसिड की तरह बिहेव करता है तो हमें पता है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है विद अ पॉप साउंड। ये आइडेंटिफिकेशन था हाइड्रोजन गैस का कि इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। सो अगर तो बेसिकली अगर मैं इथेनॉल की रिएक्शन लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम के साथ करता हूं विच इज अ मेटल, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट क्या मिलेगा? यहां से H तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, H तो रिमूव हो जाएगा। और देखो आपके पास है H प्लस होता है ना, मेटल्स भी प्लस होते हैं बिकॉज आपको पता है कि वो दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वो भी प्लस हो गया। तो क्या होगा? और O तो नेगेटिव होगा। तो ये दोनों कंबाइन कर लेंगे तो हमें सॉल्ट मिल जाएगा। प्लस माइनस जब मिलते हैं तो सॉल्ट मिलता है, CH3 CH2O Na। ये तो मैंने स्टार्ट किया इथेनॉल के साथ
और मुझे मिल गया सोडियम इथॉक्साइड सॉल्ट, सोडियम इथॉक्साइड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैसेस इन्वॉल्व। तो इसका मतलब ये रिएक्शन तो हो रही है, तो वो एसिडिक है इसलिए वो ये रिएक्शन को दे रहा है, ये ठीक है। अगर मैं ये वाली रिएक्शन बोलूं CH3CH2OH प्लस इस बार अगर मैं उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो क्योंकि ये अगर ये एसिड है ये बेस है तो ये रिएक्शन होनी चाहिए, तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो ये मिलना चाहिए CH3CH2ONA प्लस वाटर। अगर ये एसिड है और ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये सॉल्ट प्लस वाटर देना चाहिए इसको, यस और नो? यस, होनी तो ये रिएक्शन चाहिए, बट ये रिएक्शन होती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं होती क्योंकि देखो ऐसे तो O के साथ H यहां वाटर में भी प्रेजेंट है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूं वाटर भी एसिडिक नेचर को शो कर रहा है? यस। और वाटर जो होता है आपका, वाटर इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, मोर एसिडिक देन इथेनॉल। तो आप खुद बताओ एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड को कैसे, मतलब हाउ कैन अ वीक एसिड गिव राइज टू अ स्ट्रॉन्ग एसिड? क्या एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड दे सकता है? नहीं दे सकता, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हां, अगर कोई एसिड होता जो वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो उस केस में वो रिएक्शन हो जाती, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड को फॉर्म करता। अच्छा, और सिर्फ इथेनॉल ही नहीं, इथेनॉल के बाद जितने भी मेंबर्स है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, वो सारे ही वाटर से कम एसिडिक है, एक्सेप्ट वन मेंबर ऑफ एल्कोहल्स विच इज मीथेनॉल, द फर्स्ट मेंबर। तो अगर मैं मीथेनॉल की बात करता हूं, मीथेनॉल सिर्फ यही ऐसा मेंबर है जो ये वाली रिएक्शन भी देगा। क्यों? क्योंकि दिस इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसे मैं स्टार मार्क कर देता हूं। ये एक इकलौता ऐसा अल्कोहल है जो आपका ये वाली रिएक्शन देगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर के से ज्यादा एसिडिक होता है। ओके, नाउ सेकेंड रिएक्शन, दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। नाउ डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डी मतलब रिमूव, हाइड्रेशन मतलब वाटर, तो वाटर का रिमूवल, removal of water in the presence of acid, in the presence of acid। इसलिए मैं इसको एसिडिक डिहाइड्रेशन भी बोलता हूं, एसिडिक डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखिए अब मेरे पास ये इथेनॉल है, ठीक है, और मेरे पास एसिड है लाइक H2SO4, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड, और मैं इसको हीट कर रहा हूं एट 443 केल्विन। तो आपको क्या मिलेगा? आपको एल्कीन मिलता है, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या रिमूव हो गया? डिहाइड्रेशन है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। तो आपको ये रिएक्शन याद रखनी है, अल्कोहल रिएक्टिंग विद एन एसिड टू गिव एल्कीन, एंड दिस इज डिहाइड्रेशन। क्योंकि अल्कोहल से वाटर का रिमूवल होता है। कैसे रिमूव होता है? ऐसे रिमूव होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक H ऐसे शो कर सकता हूं और ये OH है, तो देयर इज अ रिमूवल ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल, और ये वाला बॉन्ड, और देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो आपको इथीन मिल गया, इथेनॉल से इथीन मिल गया। यू स्टार्टेड विद इथेनॉल and you end up getting, now concentrated H2SO4 is acting as a dehydrating, यही हमारा वाटर रिमूव कर रहा है, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट मीन्स it removes water, it removes water। अगर आपको फिर देखना है तो आप ऐसे समझ सकते हो इस रिएक्शन को। देखो ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने यहां पे शो कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी बचे हुए हैं, उसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं। प्लस एसिड्स कौन होते हैं? जो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं, तो ये H पॉजिटिव आया किससे? एसिड से। तो देखो
ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्योंकि H पॉजिटिव है, वो अपना पॉजिटिव खत्म करना चाहेगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर, तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2, ऑक्सीजन एक H पहले ही था, एक H अब आ गया। अब क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो इसके पास क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। इसके पास क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब देखो ऑक्सीजन तो चाहेगा ही नहीं उसके पास प्लस चार्ज आए, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन, उसके पास तो एक्सेस, मतलब वो तो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन्स मैं लूं, यहां तो आपने उसके पास पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो अब क्या होगा, क्या करेगा ऑक्सीजन, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहां से रिमूव हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो -H2O हो गया। अब आपके पास बचा CH3 CH2 और इसके पास पॉजिटिव आ गया। क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन लेकर चला गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो यहां पॉजिटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव कैसे जाएगा, अब देखो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, CH H H। अब क्या होगा, ये वाला H यहां पे शिफ्ट होगा, मतलब ये रिमूव हो जाएगा और ये वाटर और ये अपना जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पर इसको दे देगा। तो आपके पास क्या मिला, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और ये जो H गया, ये H एक्चुअली ये वाटर के पास अभी यहां पे लोन पेयर है, तो ये अब इस वाले को यहां से रिमूव करता है, क्योंकि अभी भी वाटर में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एक वाटर में भी 2 लोन पेयर है और उसने इसको रिमूव किया। तो देखो आपके पास H2O था और अब उसके पास एक H और आ गया, तो आपने क्या लिख दिया, H3O प्लस, दिस इज योर हाइड्रोनियम आयन। तो आपके पास क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन, सिंपल, एंड दिस इज ethene। So you started with ethanol and you end up to ethene. Okay. अब हम एक और मॉलिक्यूल देखते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जो कि है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड देखिए, अच्छा अब यूजेस की बात करें इथेनॉल, तो आपको पता है एक यूज एज एन एंटीफ्रीज यूज होता है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए तो आप यूज करते ही हो। उसके बाद हम एक नेक्स्ट है, आप यूज करते हो एज एन पीपल दे टेंड टू यूज अल्कोहल, सो फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। देन वी हैव, और क्या यूज है, टिंचर ऑफ आयोडीन। वी नो दैट इट्स एन एंटीसेप्टिक। व्हाट इज दैट, इट इज अ solution of iodine, potassium iodide, which is dissolved in a solution of ethanol and water. So tincture of iodine. So these are some of the uses. Now ethanoic acid, which is also called acetic acid. Acetic acid is the common name, which is CH3COOH. ठीक है। अगर यूज की बात करें तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर। हमारे पास विनेगर है, विनेगर में क्या होता है, 5 to 8% एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। ओके, अब देखिए हमारे पास इथेनोइक एसिड है, इसकी हमें 2 रिएक्शंस पढ़नी है। सबसे पहला एस्टिडिफिकेशन रिएक्शन। एस्टिडिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, इट्स अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल, रिएक्शन बिटवीन acid and alcohol in the presence of acid, H2SO4, concentrated H2SO4 as a catalyst. It is acting as a catalyst as well as a dehydrating agent. I'll tell you. So suppose if I have acetic acid, I react it with ethanol, CH3CH2OH. What happens? There is a removal of water molecule like this, and what is formed is CH3. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, there is a removal of water molecule like this. Basically this is a reversible reaction. वो दोनों डायरेक्शन में जा सकती है. Acid plus alcohol gives ester plus water, फिर ester plus water again ये आपको दे सकता है. So this is ester, CH3CO and this O, देखो CH3CO, OCH2, CH3. This is your ethyl ethanoate. This is a ester. Ester is a sweet smelling substance which is used in flavoring agents and perfumes. So this is your ester. So it forms ester plus water.
Now, like I said, this is a reversible reaction. This acid reacts with alcohol to give ester plus water. Then they again combine to give back the acid and alcohol. So I do not want this reaction to be reversible. उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक कैटलिस्ट यूज करता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. अब अभी मैंने आपको पीछे भी बताया कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वो वाटर को रिमूव करेगा यहां से, और अगर रिमूव करेगा तो ये फिर रिएक्ट करके वापस एसिड और अल्कोहल दे ही नहीं पाएगा. इसलिए दिस इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. दिस इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट प्लस डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ओके. और जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है एक्शन ऑफ एसिटिक एसिड with action of acetic acid on metal carbonates and metal hydrogen carbonates. Now देखो, अच्छा अगर मैं आपको बोलूं बेकिंग सोडा, तो आपको पता है बेकिंग सोडा क्या होता है. बेकिंग सोडा होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. लेकिन अगर मैं बोलूं बेकिंग पाउडर क्या होता है, जो हम केक्स में यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर जो होता है वो आपका मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का प्लस सम एडिबल एसिड, खाने वाला एसिड, जिसमें हम विनेगर भी यूज कर सकते हैं. तो अगर मैं इसमें NaHCO3 प्लस एसिटिक एसिड यूज करता हूं तो दिस कॉम्बिनेशन इज बेकिंग पाउडर. अब हम ये केक में यूज करते हैं, तो देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी इसकी हेल्पफुल है, कि किस प्रॉपर्टी की वजह से ये केक्स में यूज होता है. तो जब मैं एसिटिक एसिड को रिएक्ट करता हूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट. दिस इज योर एसिड, दिस इज हैविंग बेसिक कैरेक्टर, सो आई गिव सॉल्ट CH3COO Na, सोडियम सोडियम, दिस इज जो आप ऐसे लिख सकते हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड. और देखो, और जब भी आपकी कभी या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो या कार्बोनेट्स हो, हमेशा देयर इज अ रिमूवल ऑफ CO2 गैस. जब आप उसको हीट करते हो जब आपको हीट करते हो तो थर्मल एक्शन से हमेशा वहां से CO2 गैस इवॉल्व होगी प्लस H2O. बेसिकली ये आपको पता है H2CO3 होता है, जो कि CO2 प्लस H2O होता है. ठीक है. So this is 1, 2. This is everything is balanced. Okay. Now, similarly, if I have ethanoic acid and I treat it with this time sodium carbonate, so what happens? Again, there is a formation of a salt plus CO2 plus H2 plus CO2 plus H2. You can write over here. ठीक है. Tell me if this is clear. Yes, tell me if this is clear. So this is 2 and this is 2. Yes, I hope this is clear. So basically, acids react with metal carbonates and metal hydrogen carbonates to give to evolve carbon dioxide gas and water. Okay. So I hope this short subtopic from the chapter carbon compounds is clear to you. Okay. All right. So thank you so very much. Do take care.